Good morning, my dear student. In our last classes, we already discussed quadratic equation with the help of factors, middle term split method. In the quadratic equation, you know that we can find the value of given variable in the quadratic equation. Which variable are given in any quadratic equation, then we can find the value of this. It is called the root of the quadratic equation, and we already discussed by two methods. One is the factorization method, first with the help of middle term split method, and second one is the completing the square method. Here we can discuss the quadratic equation by the Sridharacharya rule or quadratic formula. Sridharacharya rule or quadratic formula. Quadratic in your book it is given the quadratic formula. Then see how we can get the quadratic formula and what is the quadratic formula. Here ax square bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation. देखिए श्रीधराचार्य फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ही होता है. आपकी बुक में श्रीधराचार्य नाम से नहीं दिया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से दिया है. ठीक है, तो उसको आपको इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिडक्ट नहीं करना है, प्रूफ नहीं करना है, सीधे सीधे इसका एप्लीकेशन है. ठीक, तो हम पहले सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लेंगे कि होता क्या है. देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी आप x की वैल्यू निकालते हो, तो x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a. यह जो है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है. जैसे आपको बताया गया था कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट निकालते हो, यू कैन फाइंड द रूट or value of in quadratic equation. Then first way we can find the root with the help of factorization, middle term split method and completing the square method. And second method, another method is with the help of quadratic formula. One more method we discuss here. Now here it is the quadratic equation. You know now in this topic we can deduce or prove the quadratic formula. See how we can prove. It is the quadratic formula and this formula here we prove now. Now you know that in quadratic equation ax square bx plus c is equal to 0. It is a quadratic equation and it is not necessary here a is the imperfect. Here then first of all we can imperfect square, then first of all we can convert with completing the square method. Here we can use the completing the square method for the factorization or for getting the value of x. Clear? Now first of all we can, then you know that there are two methods to solve it. First one is multiply and second one is the divide. Here we can discuss with the division method. Then we can divide it by a. Why a? Because if we can divide it by a, then here 1 and you know that 1 is the perfect square and a are cutted. Now it will be x square plus bx upon a plus c upon a is equal to 0. Clear? You know that in the completing the square method we have the first value, first term, because you know that here x is m plus n whole square is equal to m square plus 2mn plus n square. In this square of the first term plus 2 into first term into second term plus square of the second term. Here in this way we have got the square of the first term. Clear?
एंड वी डोंट नो व्हाट इज द सेकेंड टर्म। आप इसमें देख रहे हो कि हमको पहला टर्म तो पता है कि x है, लेकिन हमको सेकेंड टर्म नहीं पता है, तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सेकेंड टर्म ही निकालते हैं। सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप क्या करते हो, ये जो फार्मूला होता है इससे आप कंपेयर करते हो। ठीक है, यह कंपेयर आपको रफ पे करना होता है, यह कहीं भी नहीं दिखाया गया, सीधे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको बताया गया है, तो आप इससे कंपेयर करोगे। चलिए, तो आप कंपेयर करोगे तो क्या होता है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2mn और यह मिडिल टर्म यही है इसका bx/a। अब आपका फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या है, x है तो 2x और n bx/a। तो यहां x से x कट जाएगा तो n इक्वल टू b/2a। यह 2 इधर जाके डिवाइड कर देंगे तो आपको सेकेंड टर्म पता चल गया। अब हम क्या करते थे, इस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इसमें ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको बताया गया था, ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं कि इसके वैल्यू में कोई चेंज ना हो। ठीक है, तो चलिए अब x स्क्वायर प्लस bx/a प्लस b/2a होल स्क्वायर ऐड कर दिया गया और माइनस b/2a होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिए, और यह आपका थर्ड टर्म तो ऑलरेडी है, प्लस c/a इक्वल टू 0। अब आप यहां से यहां तक को आप लिख सकते हो क्या, x प्लस b/2a होल स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों टर्म को आप 0 के उस साइड ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 के उस साइड जाएगा तो यह माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, यह b/2a होल स्क्वायर और यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा c/a। ठीक है, अब यहां ब्रैकेट को आप ब्रेक करेंगे, इस वाले को, राइट साइड वाले ब्रैकेट को, तो यह b² / 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस c/a। अब आप देख रहे हो कि इसका जो डिनोमिनेटर है वह सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब एलसीएम हो गया इसका 4a स्क्वायर, यहाँ 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, यह b स्क्वायर हो गया, यहाँ a से a कट जाएगा, a स्क्वायर में से a कट जाएगा, क्या 4a बच गया, 4ac में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4ac। ठीक, और इधर आपका क्या हो गया, x प्लस b/2a होल स्क्वायर। अब हमको मिल गया यहां पर x प्लस b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो यह रूट में हो जाएगा। तो देखिए जरा, x प्लस b/2a इक्वल टू अंडर रूट प्लस और माइनस। आप जानते हैं कि जब कभी भी स्क्वायर लिया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है तो वो प्लस और माइनस होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac/4a स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस, यह 4b स्क्वायर माइनस 4ac तो रूट में ही रहेगा, क्योंकि इसका आप कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर यह नहीं है तो इसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो, लेकिन यह 4a स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इसका रूट निकाल सकते हो, तो यह हो जाएगा 2a। ठीक है, अब आप क्या करते थे, x माइनस x प्लस b/2a। अब x की वैल्यू आपको निकालना होता है सिर्फ फार्मूले में, तो यह हो गया आपका x, यह इधर चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a और यह इधर जाएगा तो माइनस
b/2a हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको आप 2a लिख सकते हो। ठीक है, अब यह प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस b। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यही आपका श्रेष्ठाचार्य का फार्मूला है जो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो देखिए श्रेष्ठाचार्य फार्मूला प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करोगे, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में डिवीजन प्रोसेस से करोगे। तो डिवीजन प्रोसेस से मतलब हमको पहले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वह प्योर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसी से आप डिवाइड कर दोगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 बनाए, 1 बन गया, तो ये जो पहला टर्म है यह परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और बाकी ऐसे हो गया। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आप सेकेंड टर्म आपको नहीं पता है, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए आप इस फार्मूले से, आपको दिमाग में फार्मूला रखना है, सेकेंड टर्म निकालोगे। तो यही जो सेकेंड टर्म है इसका सेकेंड टर्म से कंपेयर करोगे। तो जब आप कंपेयर किए हो तो आपको सेकेंड टर्म पता चल गया b/2a। अब जब आपको सेकेंड टर्म पता चल गया तो सेकेंड टर्म आप इस इक्वेशन में ऐसे ही नहीं, एक ही तरफ नहीं जोड़ सकते हो, जोड़ना और घटाना, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों करना पड़ेगा। तो आप उसका स्क्वायर, तो b/2a सेकेंड टर्म हुआ तो उसका स्क्वायर ऐड कर दिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फॉर्म उसका चेंज हो गया। तो अब यहां से यहां तक को आप लिख सकते हो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और इस पूरे टर्म को 0 के उस साइड ले गए हैं। तो यह माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, यह प्लस था तो माइनस हो गया। इसको सॉल्व किए तो यह इस तरीके से आप श्रेष्ठाचार्य फार्मूला प्रूव कर लीजिए। ठीक, तो अब आपको यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है और आप उस पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी नहीं कर पाते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी नहीं कर पाते हो, तो सीधे सीधे उस क्वेश्चन को श्रेष्ठाचार्य फार्मूले से सॉल्व कर देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x (13x प्लस 40 इक्वल टू 0). यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको जो है हम श्रेष्ठाचार्य फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका काम होगा, आप इसको कंपेयर करोगे। किससे कंपेयर करोगे? कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Then given equation are compared with the standard form of the quadratic equation. For there you got the value of a is equal to 1, b is equal to 30 and c is equal to 40. Clear? And you know that quadratic formula is x is equal to minus b plus minus under root b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब यह जो a b c की वैल्यू है इस फार्मूले में आप पुट कर दोगे, तो यह माइनस b के जगह पे 13 प्लस माइनस 13 स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 40 है, और 2a 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है, तो यह हो गया माइनस 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर 169
और 4 1 जा 4 और 4 40 जा 160 by 2a minus 13 plus minus 169 minus 160 it is 9 by 2 into 1 na? By 2 it is minus 13 plus minus square of the 9 is 3 by 2. Now taking प्लस साइन, आप प्लस साइन लोगे पहले तो क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3, यहां से यह जो प्लस माइनस है इसमें से प्लस लेना है बाई 2, तो ये माइनस 13 और प्लस तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 विथ निगेटिव साइन बाई 2 इट इज माइनस 5. अब टेकिंग निगेटिव साइन तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 13 माइनस 3 बाई 2, दोनों माइनस है ऐड हो जाएगा माइनस 16 बाई 2, तो यह माइनस 8. तो अब x की यहां दो वैल्यू हो गई, आंसर x इक्वल टू माइनस 5 और माइनस 8. देखिए यदि आपसे यह क्वेश्चन में नहीं कहीं दिया गया हो कि किस मेथड से आप सॉल्व करिए, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड बताया गया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताया गया है और सिर्फ 4 रूल बताया गया है. आप इन तीनों फार्मूले में से किसी एक को अप्लाई करके लगा लेंगे, सभी कंडीशन में आंसर सेम आएगा. यदि आपका आंसर सेम नहीं आता है तो आप दोबारा से चेक करिए, क्योंकि आंसर हमेशा सेम ही आएगा. ठीक है, हो सकता है कि आंसर सेम नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो उसके लिए अभी नेचर ऑफ द रूट से हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक टॉपिक बचा है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.